ਗਣਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵੰਦਨ, ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੰਦਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੰਦਨ ਪੂਜਨ, ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਨ ਹੋਇਆ। ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਭव्य ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਔਰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੌਭਾਗਯ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਜੀ ਮੰਗਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਮੰਗਲਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਵ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੋਇਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਦੇਵ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖਣ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਸਭਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਘਨ ਹਰਤਾ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਗਣੇਸ਼ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਣਪਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾਗਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਜ ਮੁਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
क्योंकि माँ एक इस तरह का देवता है जिहड़ा बिना ही कुछ मंगे तो प्रसन्न हो जाता है। बाकी आप किसी ना किसी देवता की पूजा करिए, किसी की आराधना करिए, फिर वो देवता का सानू आशीर्वाद मिलता है। किसी गुरु के कोल असी चले जाइए, जिन्ना चिर असी गुरु जी के चरणों के विच मत्था नहीं टेकते, जिन्ना चिर असी गुरु स्वीकार नहीं करते, जिन्ना चिर असी गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु के अनुसार असी नहीं चलते, तो उन्ना चिर गुरु तो भी सानू कोई ज्ञान या आशीर्वाद नहीं मिलता। तीर्थ ते जाके भी स्नान करना पैंदा है और तीर्थ ते जाके स्नान करके फिर सानू तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है। किसी नूं घरे बैठे हुए नूं तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। किसी नूं घरे बैठे हुए गंगा स्नान का फल, गंगा सागर के स्नान का फल नहीं मिलता। उस जगह पर जाना पैंदा है, वंदन करना पैंदा है, स्नान करना पैंदा है, आचमन करना पैंदा है, दर्शन करना पैंदा है, देवता दे जाके पूजन जल चढ़ाना पैंदा है, प्रसाद वंडना पैंदा है, पुष्प अर्पण करने पैंदे है। बहुत सारा कुछ करन तो बाद साडे उत्ते सब लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिंदे है। लेकिन माँ असी कुछ भी ना करिए तां भी अपने हिरदे तो सानू आशीर्वाद हमेशा दिंदी है। और जिस दे उत्ते माँ की कृपा सदैव बनी रवे, सदा माँ की कृपा रवे जिस दे उत्ते, उसनों बड़े बड़े देवता भी हरा नहीं सकते। आपां गणपति जी का प्रसंग सुनिया, एक पासे भगवान महादेव जी की बहुत बड़ी सेना है और एक पासे कौन है, माँ की शक्ति के नाल पैदा हुए गणपति जी महाराज। एक पासे माँ की ताकत है, एक पासे माँ का आशीर्वाद है और एक पासे भगवान भोलेनाथ जी की सब देवतावां की सेना उस जगह पर खड़ी है। लेकिन माँ का आशीर्वाद है जिहड़ा वो सब दे उत्ते भारी पै गया, सारिਆਂ ਨੂੰ हरा दिता। अंत दे विच महादेव जी ने अपना अमोघ त्रिशूल लैके फिर उसका वार करके और सिर नूं धड़ दे नालों अलग किया। तो इस दे विच माँ की महत्ता, माँ की महिमा का बहुत ज़्यादा वर्णन है कि माँ तो बच्चे नूं किते भी पासे नहीं होना चाहिए और हमेशा हर समय इस तरह का प्रयास कोशिश होनी चाहिए है कि माँ की कृपा दृष्टि, माँ की दया दृष्टि साडे उत्ते बनी रहे। और माँ सानू बिना ही कारण आशीर्वाद दिंदी रहिंदी है। बच्चे दे उत्ते कोई दुख ना आवे, मेरे बच्चे का दर्द भी मैनू मिल जाए, मेरे बच्चे की पीड़ा भी मैनू मिल जाए, मेरे बच्चे के सारे दुख भी मैनू मिल जान। और माँ ही एक इस तरह का देवता है जो साडे वास्ते हर समय शुभ सोचता है। बेटे बेटियां चाहे सारी दुनिया दे विच माड़े होण, फिर भी माँ कहती कि मेरा बेटा सब तो चंगा है, मेरा बेटा माड़ा नहीं है, मेरा बेटा सब तो चंगा है। तो वो एक माँ ही है जो इस तरह का भाव रखती है साडे वास्ते। तो माँ की कृपा प्राप्त करनी, माँ का आशीर्वाद लेना और माँ का वंदन करना, ये प्रसंग सानू दसदा है कि जिन्ना क असीं माँ की सेवा कर लवांगे और उन्ना की ही सानू ताकत की, शक्ति की ज़्यादा प्राप्ति होएगी। सूत जी नूं ऋषियां ने पूछा कि प्रभु ये तो तुसीं गणेश जी महाराज की कथा सुना दी कि भगवान शंकर जी ने गणपति जी का सीस उतारिया सी, और कई जगह ते सुनन वास्ते आउंदा है, कई जगह ते वर्णन मिलता है कि भगवान गणपति जी प्रगट होए सी माँ दे महल दे अंदर, यानी कैलाश पर्वत के उत्ते जिस भी जगह ते माँ भवानी वास करती सी उस जगह ते भगवान गणपति जी वो प्रगट होए। महाराज वो प्रसंग कृपा करके सानू सुनाओ, क्योंकि गणेश जी महाराज नूं माँ पार्वती ने अपने बटने दे नाल बनाया, ये तो सब लोग जानते हैं, पर गणपति जी महाराज स्वयं किस वेले किस तरह के नाल प्रगट होए उसकी कथा कृपा करके सानू दसो। सूत जी दस रहे कि ऋषियों मैं तुहानू वो जड़ा प्रसंग है ना उसनू भी सुना रहा, तो तुसीं उसनू सुनो कल्प भेद दे नाल। कल्प भेद का मतलब हुंदा है कि जिन्ने वार भी दुनिया बनती है प्रभु उन्ने वार ही उस लीलावां करते अलग अलग। जिस वेले अपने
इस मृत्यु लोक के उत्ते 1000 चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 चक्कर पूरा कर लेंदे है तो फिर उस वेले ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है, फिर उन्होंने 2 दिन बीत जाते हैं, हफ्ता बीत जाता है, महीना बीत जाता है, फिर साल बीतता है, फिर 100 साल बीतते ब्रह्मा जी के, फिर दूसरे ब्रह्मा जी आ जाते हैं। इस तरह के नाले सृष्टि हरेक वार बनती है, हरेक वार बदलती है, लेकिन प्रभु दियां जड़ियां लीलावां है सृष्टि के अंदर वो हुंदियां रहिंदियां। किते किसी तरह के नाल प्रभु अपनी लीला करते हैं, किते किसी रूप दे विच प्रगट होंदे, किते किसी तरीके दे नाल प्रगट होंदे है। तो इस दे बारे दस रहे कि एक वार का जिक्र है कि माँ भवानी माँ पार्वती जगत जननी महादेव जी के श्री चरणों के विच बैठी सी और बड़ी उदास। जिस वेले माँ बड़ी उदास बैठी, बाबा भोलेनाथ ने देखा कि मेरे सामने उमा बड़ी उदास बैठी है, जान गए महादेव, कहने लगे देवी स्वस्य दुखस्य कारणम वद, अज तू बड़ी उदास है, अज तेरा चेहरा बड़ा मलिन है, अपने दुख का कारण दस। कहने लगी भगवान दुख का कोई नहीं है, एक अभिलाषा जरूर है, मन के अंदर एक इच्छा है मेरी और उस इच्छा नूं तुसीं पूरा कर सकते हो। महादेव कहने लगे देवी पार्वती इस तरह की किहड़ी इच्छा है जिसनूं तू पूरा करना चाहनी है। महाराज होर कोई इच्छा नहीं, तुसीं तपस्या दे विच चले जाने हो, थोड़े सेवक गण है जिहड़े वो अपने अपने सारे कामां दे विच, कोई भजन दे विच, कोई पूजा दे विच, कोई पाठ दे विच, कोई थोड़ी सेवा दे विच, और कोई इस कैलाश पर्वत के चारों पासे घूमते रहिंदे। मैं घर दे विच कल्ली रह जानी हाँ। और गृहस्थी का जिहड़ा घर है, जिन्ना चिर उहदे घर दे विच बच्चे की किलकारी नहीं आउंदी, जिन्ना चिर बच्चे की आवाज़ नहीं गूंजदी, किते खेडण दी, किते हस्सण दी, किते रोण दी, किते डिगण दी, किते उठण दी, किते संभलन दी, जिन्ना चिर सारी लीला नहीं ना हुंदीगी, उन्ना चिर गृहस्थी का जिहड़ा घर है उसनूं अपूर्ण मन्निया जांदा है, उसनूं पूर्ण नहीं मन्निया जांदागा। गृहस्थी का घर कदों पूर्ण हुंदा है जिस वेले उहदे घर दे अंदर, उहदे विहड़े दे विच, उसदे मकान कोठी दे अंदर बच्चों की किलकारियां गूंजदियां है। नहीं तो सुनसान है, चाहे करोड़ों की कोठी है, करोड़ों का बंगला है, जिन्ना चिर उस जगह पर किसी बच्चे की किलकारी की आवाज़ नहीं आती उन्ना चिर वो उदासी भरिया है। महाराज मैं भी चाहनी हाँ कि अपने घर के अंदर कोई इस तरह का बालक पैदा होवे, पुत्र पैदा होवे, एक तो मैं पुत्र की पालना पोषणा कर सका, मैं पुत्र का मुख देख सका, और दूसरा अपना कैलाश पर्वत ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सन्नाटा है ना ये सारा दूर हो जाए। प्रभु मेरी होर कोई इच्छा नहीं, और तुसी दसो कि मैनू ये वास्ते की करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ भगवती माँ उमा पार्वती नू दस रहे कि हे उमा जो तू पूछया है ना, एक बार इहो सवाल स्वंभू मनु जी की धर्म पत्नी शतरूपा ने ब्रह्मदेव तो पूछया सी। ब्रह्मा जी महाराज अपने कमल आसन ते विराजमान सी ब्रह्मलोक के अंदर। स्वंभू मनु और शतरूपा दोनों उन्हों की शरण दे विच गए, शरण दे विच जाके नमन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहन लगे पिता जी कृपा करके दसो कि साडे भाग दे अंदर संतान है कि नहीं है, साडे घर दे अंदर संतान होएगी कि नहीं होएगी। संतान तो बिना साडा जिहड़ा जीवन है अधूरा है, क्योंकि पुत नाम हुंदा नरक दा, त्रै नाम हुंदा उस तो तारन वाला। पुत्र आखदे है जो नरक तो, मुसीबत तो, दुख तो, कष्ट तो माता पिता नूं उच्चा चुकण वाला होवे, उस तो बाहर कढण वाला होवे, उस नूं कहा जांदा है पुत्र। एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वम तारियते कुलम। घर दे विच, खानदान दे विच, वंश दे विच किते एक भी धर्मात्मा पुत्र पैदा हो जावे, वो अपने सारे वंश, सारे खानदान, सारे कबीले का नाम रोशन कर दिंदा है, सारियां नूं तार दिंदा है। महाराज साडी वृद्ध अवस्था हो चली है,
लेकिन हाल तक घर दे विच साडे पुत्र का जन्म नहीं होयागा। मैनू इस दे बारे कोई व्रत दसो, मैनू इस दे बारे कोई पूजा दसो, मैनू इस दे बारे कोई पाठ दसो, मैनू कोई इस दे बारे मंत्र जाप दसो कि मेरी जिहड़ी सुन्नी गोद है ये भर जावे। ब्रह्मा जी कहन लगे, देवी देखो इस तरह का जिहड़ा व्रत है ना, उस दे बारे मैं तुहानू दस रहा, और इस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। पुण्यक व्रत, उस व्रत नू तुसी करो अते उस व्रत दे करन दे नाल गोलोक धाम दे वासी भगवान कृष्ण वो थोड़े ते कृपा करनगे। राधा अष्टमी वाले दिन प्रसंग आया सी ना कि जिस तरह दे नाल ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है, उस तरह दे नाल गोलोक धाम है। जिस गोलोक धाम दे अंदर भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर वास करते हैं, उन्हां दा ध्यान करो। इसे ही कारण ये शुरू तो चले आ रहा है, किसी के घर के अंदर कोई संतान की उत्पत्ति नहीं है, संतान दे विच देरी है, तो अपने गुरु, अपने ब्राह्मण, अपने ज्योतिषी की दसते हैं कि भाई संतान गोपाल दा, लड्डू गोपाल जी का पूजन करो, कन्हैया जी का पूजन करो, और कन्हैया दा कान्हा दा पूजन करन दे नाल घर दे विच बालक होएगा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते, इस मंत्र का जाप दसते है कि भगवान कृष्ण जी का जो मंत्र है, तो पुण्यक व्रत है जिहड़ा वो भी भगवान का ही है। ऐ देवी शतरूपा तुसी पुण्यक व्रत करो, और उस पुण्यक व्रत करन दी वजह दे नाल थोड़े घर दे अंदर संतान हो जाएगी, थोड़े घर दे अंदर पुत्र हो जाएगा। तो उसने पूछा कि महाराज ये पुण्यक व्रत ये किस तरह दे नाल करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी दस रहे कि हे बेटी, माघ महीने दे चानने पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि नूं ये जिहड़ा व्रत है ये कीता जांदा है, और इस व्रत का आरंभ किया जाता है उस दिन। उस तो पहले दिन शुद्धि दे नाल रात नूं सौ जाना चाहिए है, शुद्ध होके पवित्र होके त्रयोदशी वाले दिन सवेरे प्रातः काल उठ के फिर बड़े शुद्ध मन दे नाल और शुद्ध संकल्प दे नाल, क्योंकि साडा संकल्प भी शुभ होना चाहिए है, शुद्ध होना चाहिए है। जिस तरह का संकल्प असी लैके, संकल्प का मतलब होंदा है भावना, जिस तरह की भावना लैके, जो भाव लैके असी परमात्मा की शरण दे विच जाने हाँ, उस तरह के नाल ओह परमात्मा साडे भाव नूं देखते हुए सानू फल दिंदे। श्रीमद भागवत महापुराण के अंदर आपां कथा सुनते हैं ना कि राजा अंग की किस तरह के नाल उत्पत्ति हुई, वेन किस तरह के नाल पैदा होए, और जिस वेले उन्होंने बुरे कर्म शुरू किए तो पता लग्या कि इन्हां दे घर दे विच जिस वेले इन्हां दा जन्म होने वाला सी राजा दा, तो उस वेले इन्हां दी माता दे विचार दूषित हो गए सी, जिहदे कारण ये इस तरह का उपद्रवी पुत्र पैदा होया। तो शुभ साडा संकल्प भी होना चाहिए है, साडे विचार, संस्कार, सोच और मन, ये सारी चीज़ां बड़ी शुद्धि दे नाल सानू रहनियां चाहिए, होनियां चाहिए, सब चीज़ां शुद्ध। ए देवी त्रयोदशी वाले दिन सवेरे प्रातः काल उठ के और उस दिन भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का वंदन करना चाहिए है, और सब तो पहले भगवान की आराधना करके स्वस्ति वाचन यानी कि वेद मंत्रां का पाठ। स्वस्ति का मतलब होंदा कल्याण, कल्याणकारी जो मंत्र है, जो ऋषि मुनिया ने जिसनों चुनिया है कि इस मंत्रां का उच्चारण किया जाए तो उसका फल जल्दी ही मिलता है। वैसे तो जिन्ने भी मंत्र है अलग अलग कामनावां वास्ते है, वो शांति दे देने वाले है, सुख दे देने वाले है, पर फिर भी उन्हां सारियां दे विचों कुछ मंत्रां का चयन किया गया, कुछ मंत्र चुने गए जिन्होंने स्वस्ति वाचन किया जाता है। जिस वेले आपां घर दे विच भी कोई पूजा पाठ कराउने हाँ, इस जगह पर भी गणपति पूजन हुंदा है ना, तो पंडित जी पहला ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा इस तरह के मंत्रां का उच्चारण करते हैं। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतो इस तरह के वेद मंत्रां का उच्चारण करते हैं। अलग अलग
स्वस्ति वाचन कई तरह के मंत्रों के नाल बनाए गए है और उन्होंने मंत्रों इकट्ठे किया गया है। स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए फिर अपने आचार्य का वर्ण करना चाहिए। आचार्य का वर्ण करने का मतलब जो असी अनुष्ठान प्रारंभ करते हाँ, जो असी पूजा पाठ शुरू करते हाँ, जो ब्राह्मण उसनों करवाउण वाला है, जिसकी देख रेख दे विच सारा कार्य संपन्न किया जाता है, उस ब्राह्मण को कहा जाता है आचार्य। सारिਆਂ ਦੀ देख रेख करने वाला आचार्य का वर्ण करना चाहिए। वर्ण करने तो बाद संकल्प करना चाहिए, देवतावां का पूजन करना चाहिए और अपने सौभाग्य, अपने संतान, इन्हां दी बढ़ोतरी वास्ते भगवान दे अगे गणेश्वर जी का, गोलोक धाम निवासी भगवान कृष्ण जी का 16 चीज़ों के नाल पूजन करना चाहिए। इस तो बाद सौंदर्य साधन यानी कि जिवें मौली, मेहंदी, संधूर, कज्जल, जो भी सौभाग्यदायक सौभाग्य दियां निशानियां है, इन्हां चीज़ों नूं ये वरतना चाहिए है। इस तो बाद पुत्र प्राप्ति की कामना वास्ते भगवान दे सामने प्रार्थना करनी चाहिए है और इस व्रत नूं ना 1 साल लगातार किया जाता है। 1 साल लगातार किया जाता है। इस दे अंदर सब तो पहला पूजन दे विच कूशमांड, कूशमांड आखदे जो अपने एक पेठा हुंदा ना, पेठा, एक तो पेठा आपां घर दे सब्जी बनाने ये हुंदा हैगा, एक स्पैशल पेठा हुंदा है जिहड़ा अपने खाण दे विच वरत्या जांदा, जिस दी मिठाई बनाउंदे, उस नूं कूशमांड भी कहा जाता है। और उस दे नाल अपने भगवान का पूजन, नारियल दे नाल भगवान का पूजन ये करना चाहिए है। और जड़ियाँ सौभाग्यवती इस्त्रियाँ है उन्हां दा पूजन करना चाहिए है। उन्हां दा पूजन करते हुए प्रभु दे अगे प्रार्थना और प्रभु दे अगे उन्हां दी वंदना ये करनी चाहिए है। और शुद्धि दे नाल अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, फुल ये चीज़ां वरतनियां चाहिए हैं। इस दे नाल जिहड़े पहलां वाले 6 महीने है ना, उन्हां दे विच खाण पाण दा जो समान है तो उहदे बारे दस रहे कि किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां उस दे विच सानूं खाण पीण दे लई वरतनियां चाहिदियां है। उहदे विच अंगहीन यानी कि टुटिया होया कोई भी जिहड़ा अनाज है, दलिया होया अनाज, उसनूं नहीं खाना चाहिदा गा। टुटे हुए चावल वो नहीं खाने चाहिए, दली हुई दाल वो नहीं खानी चाहिए, कट्टी हुई जिहड़ी चीज़ है, सब्जी वगैरह तो ले सकते हैं आपां, पर जिहड़ियां दालां है, अनाज है, जिहड़े कट्टे हुए है, जिन्हां दा टुकड़े हो चुके हैं, वो नहीं वरतने चाहिए। इस दे अंदर अखंडित, अखंडित मतलब जिहड़े खंडित नहीं होए, जिन्हां दे 2 टुकड़े नहीं होए। और उन्हां चीज़ों के विचों की कुछ होना चाहिए? साबत धान, मूंगी, मटर, जौ, तिल, सठी दे चावल, तिन्नी दे चावल, दुध, घी, शक्कर, पक्या होया अन्न और लौंग, पिपल, जीरा, सेंधा नमक, समुद्री नमक, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आमला, ये जिहड़े चीज़ां है इसका भोजन करना चाहिए 6 महीनों तक। 6 महीने तो बाद फिर अपने ऋतु फल है जिहड़े मौसम के जिहड़े फल उन्हां दा अपने आहार भोजन करना चाहिए। और जिहड़े अंत वाले अपने 15 दिन है ना, अखीर वाले, उन्हां 15 दिनां दे विच निराहार रह के जल लैके या दुध लैके, दूध या जल, ये व्रत नूं खंडित नहीं करते, व्रत नूं नष्ट नहीं होण दिंदे। तां दुध दे नाल, फल दे नाल अपना जिहड़ा 15 दिन वो गुजारने चाहिए है। इस तो बाद जिस वेले व्रत की समाप्ति होवे तो बहुत सारे ब्राह्मणों नूं बुला के, संतां नूं बुला के अन्न, जल, दक्षिणा वगैरह इस दे नाल प्रसन्न करना चाहिए। इस दे अंदर भगवान का नाम लेंदे हुए हवन करना चाहिए है। और 1 साल भर का यह अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान, इस व्रत के नाल ब्रह्मा जी महाराज ने दस्या कि हे बेटी शतरूपा, तेरे घर के अंदर पुत्र का जन्म होएगा। शतरूपा और स्वंभू मनु
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ व्रत ਪੁੰਨਿਕ व्रत ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੰਭੂ ਮਨੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੰਭੂ ਮਨੂ ਸ਼ਤ ਰੂਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਯ व्रत ਤੇ ਉਤਾਨਪਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ व्रत ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ हे ਪਾਰਵਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੰਨਿਕ व्रत ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪੁੰਨਿਕ व्रत ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ व्रत ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੱਗ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੱਗ ਦੇ ਆਚਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਇਸ व्रत ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੰਨਿਕ व्रत करना है और तुसी भी इस जगह पे पहुँचो। तो पिताजी ने भी बहुत सारे दास, बड़े दासियाँ, नौकर नौकरानियाँ उस जगह पे भेज दित्तियाँ और पिताजी ने बहुत सारा समान कैलाश पर्वत के उत्ते वो भेजना शुरू कर दिता। इस दे नाल ही उस जगह ते तरह तरह के अनाज है, जड़े तरह तरह के खाद्य पदार्थ खान पीन वालियां जो चीज़ां है ना, देखते ही देखते भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत ते उन्हां सब चीज़ां के उच्चे उच्चे ढेर लग गए। जिस वेले ढेर लग गए और माँ पार्वती जी ने संत कुमार जी नूं बुला के और व्रत सी जड़ा वो शुरू किया, पूजन शुरू किया। हर रोज़ नियमित विधि विधान के नाल रोज़ाना भगवान का पूजन हुंदा है, रोज़ाना उस दे विच पाठ हुंदा है, रोज़ाना उस दे अंदर हवन यज्ञ ये कीता जांदा है। ये सारा कुछ होने के बाद धीरे 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 जिहड़ा समा सी वो बतीत हुंदा गया। जिस वेले समा बतीत हुंदा गया, सूत जी महाराज दस रहे कि ऋषियों, ऋषि देवता ये सब उस जगह ते आ रहे हैं, सिद्ध यक्ष किन्नर गंधर्व। बाहरली भी 1-2 लाइटां जगा दो। बोलो गणपति जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सूत जी महाराज दस रहे कि ऋषियों, भगवती उमा जगत जननी माँ पार्वती दे उस यज्ञ के अंदर बहुत सारे ऋषि महात्मा आ रहे हैं। पुरोहित जी अपना सारा कार्य उसनों विधि विधान के नाल पूरा करवा रहे हैं। और जिस वेले सारा यज्ञ संपन्न हो गया, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया, बहुत सारे ऋषि मुनियां नूं, आचार्य नूं बहुत सारा समान दान किया गया, बहुत सारी दक्षिणा वंडी गई। जो जो चीज़ा जो जो समान किसी को जरूरत सी, भगवान महादेव जी के कैलाश पर्वत तो उन्होंने सब नामां नूं वो समान प्राप्त होया।
अंत दे विच जदों सारा कार्य संपन्न हो गया, पूर्ण आहुति यज्ञ की पैन वाली है, माँ पार्वती और उन्होंने सामने उन्होंने आचार्य ब्राह्मण संत कुमार जी महाराज वो बैठे हैं। महादेव और पार्वती सामने विराजमान है पुरोहित जी दे। और पुरोहित जी कहन लगे, देवी उमा, हे जगत जननी, हे भवानी, हे गिरिराज किशोरी, अपना जिहड़ा यज्ञ का कार्य सी सारा हुण संपन्न हो गया। यज्ञ का सारा कार्य संपन्न हो गया, पर हजे इहदे विच थोड़ी जी कमी है। वो कमी की है? हजे तुसी पंडित जी की दक्षिणा वो नहीं दिती। और मेरा मन करता कि मैं दक्षिणा लवां भी, एक मन करता कि रहन देवां, एक मन करता कि दक्षिणा तो बिना यज्ञ पूरा नहीं हुंदागा। क्योंकि कोई भी आप अनुष्ठान करिए उस दे अंदर अपनी समर्था के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जिहड़ी दक्षिणा है उसका देने का विधान है। और ब्रह्मदेव दे पुत्र संत कुमार कह रहे कि देवी, मैं विचार करदा कि जे तुसी दक्षिणा ना दे सके तो वो भी ठीक नहीं है। मैनू मेरी दक्षिणा ना मिली तो थोड़ा यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। माँ भवानी कहन लगी कि देखो, तुसी महादेव जी का यज्ञ करवाने वास्ते आए हो। भोलेनाथ जी दे कैलाश पर्वत ते पहुँच के ये पुण्यक व्रत का बहुत भारा तुसी यज्ञ करवाया है। और हे ब्राह्मण देव, इस व्रत दे पूर्णता वास्ते कि मेरा यज्ञ सफल होवे, मेरी पूजा सफल होवे, मेरा पाठ सफल होवे, ये वास्ते तुसी अपनी जो दक्षिणा उसनू मंगो। मैं थोनू मन चाही दक्षिणा देने वास्ते तैयार हाँ। फिर दोबारा संत कुमार कहन लगे, देवी, मेरा मन कहता है कि तुसी दक्षिणा नहीं दे सकोगे। माँ पार्वती कहन लगी, ब्राह्मण देव, तुसी किस तरह की भोली गल्लां करते हो। मैं राजा हिमाचल की बेटी, त्रिलोकीनाथ भगवान महादेव जी की धर्म पत्नी, और मैं जे दक्षिणा नहीं दे सकांगी तो होर कौन दक्षिणा देने दे समर्थ होएगा। थोनू जो भी चाहिए मेरे तो मंगो। फिर कहन लगे, ठीक है पार्वती, हे माँ, जे तुसी प्रतिज्ञा करते हो कि दक्षिणा मैनू दोगे मूँह मंगी, तो मैं थोड़े तो दक्षिणा दे विच भगवान शंकर महादेव जी नू मंग रहा कि महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ मैनू दक्षिणा दे विच दे दिओ। माता पार्वती ने तो किते सोचा ही नहीं सी कि इस तरह दे नाल मेरे नाल ये ब्रह्मपुत्र करनगे। तो माँ पार्वती कहन लगी, संत कुमार जी तुसी की कर रहे हो। कहन लगे, भवानी, असी दक्षिणा मंगी है और तू प्रण कीता है कि मुँह मंगी दक्षिणा मिलेगी। मेरी मन की इच्छा है कि मैं भगवान शंकर जी नू मंग लवां, इन्हां तो बिना होर मैनू किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। माँ पार्वती दुविधा के अंदर फस गई। दुविधा के अंदर पै के माँ भवानी विचार कर रही है कि हुण की बनेगा। देखते देखते माँ पार्वती बेहोश होकर डिग पई, क्योंकि पुत्र जो मर्जी है, लेकिन जो पति की जगह है ना, वो दूसरा कोई नहीं ले सकता गा। पति तो बिना चाहे 10 पुत्र होण, उन्हां दा वो सहायक, वो उन्हां दा सहारा नहीं है जो पति का सहारा है। जो पति दे नाल सुख दुख है वो बेटियां दे नाल नहीं है। तो पति तो बिना चाहे मेरे 100 पुत्र हो जाने, मैं उन्हें 100 का भी की करना है जे मेरे पति नहीं रहे था। महाराज विचार करो। कहने लगे, नहीं, सानू पति ही चाहिए, अपने महादेव ही चाहिए है। जिस वेले भवानी बेहोश होकर डिग पई, तब भवानी दे बेहोश होकर डिगद्या सार भगवान शंकर जी ने, बाकी देवतावां ने जल दे छिट्टे दिते। जल का छिट्टा देने तो बाद पार्वती माँ थोड़ी चेतन हुई। माँ पार्वती नू होश आई। माता पार्वती
फिर अपने प्रार्थना कर रही कि ब्राह्मण देव ये बदले थानू जो चाहिए। कहन लगे देवी नहीं, मैं होर किसी चीज़ की कोई जरूरत ही नहीं समझदा गा, मैनू होर किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है। हुण जे तां तुसीं दक्षिणा दिंदे हो तो ठीक है, जे तुसीं दक्षिणा नहीं दिंदे तो फिर ये जिहड़ा यज्ञ का फल है ये थानू पूरा नहीं मिलेगा। जां तां 1 साल का जिहड़ा तुसीं अनुष्ठान किया है, 1 साल भर तुसीं तप किया, जप किया, पूजा की, पाठ किया, हवन किया, इना दान किया, जां तां सारे का सारा बेकार, और जां मेरी दक्षिणा का संकल्प करके मैनू दिओ। तो भगवान महादेव कहन लगे देवी जो ब्राह्मण मंग रहे इसनू दान करके दिओ। बाकी भी देवता वो भी कह रहे कि भगवती तुसी पहला प्रतिज्ञा की है कि असी दान मूँह मंगिया देवांगे, हुण जो कुछ इस ब्राह्मण ने मंगया है इसकी इच्छा पूरी करो, ये थोड़ा कर्तव्य है। इन्ने चिर दे विच माँ पार्वती घबरा गई कि हुण मैं की करा। सारे देवता भी मैनू इहो कह रहे हैं कि हाँ करके ना करना, पहला बोल के फिर उसनू पूरा ना करना, वचन दे के मुकर जाना, वो प्राणी काल सूत्र नरक दे विच जाके डिगदा है। भगवती बार बार पजल होके बड़ी व्याकुल होके प्रार्थना कर रही कि परमात्मा ये मेरे नाल तुसी की लीला रच रहे हो, मेरी की तुसी परीक्षा ले रहे हो। जदों बहुत सारा समा बतीत हो गया तो आके कुछ ऋषि महात्मावां ने दस्या कि हे भवानी ब्रह्मदेव जी की आग्ञा है, ब्रह्मा जी की उन्हां दी सम्मति है कि आप एक बार भगवान शंकर जी नू दे दईए और इस तो बाद दे विच उहदे बदले कोई चीज़ दे के इन्हों आप वापस ले सकते हैं। आप गऊ दान करके भी वापस ले सकते हैं, होर कुछ दे के भी वापस ले सकते हैं, उसनों आप मुल दे के भी वापस ले सकते हैं। तुसी उठो और जिहड़ी दक्षिणा है इसनों दिओ। इन्ना सुनदिया सार माँ पार्वती अनमने मन दे नाल तैयार हो गई कि मैं हुण भगवान शंकर जी का दान करके दे देवां। भगवती माँ पार्वती ने हथ दे विच जल लिया, भगवान शंकर जी नूं अपने नाल बिठाया, जिवें आपां कन्यादान करते हैं उस तरह के नाल भगवान शंकर जी का दान संत कुमार जी नूं करके दे दिता। बोलो शंकर भगवान की। संत कुमार कहन लगे महाराज हुण तुसीं पार्वती दे कोलों उठो और मेरे कोल आके बैठ जाओ। महादेव उस जगह तो उठे और माँ भवानी दे कोलों उठ के संत कुमार जी दे कोल बैठ गए। संत कुमार जी कहन लगे बाबा हुण आपां चलीए। माँ पार्वती कहन लगी प्रभु मैं कुछ दे के थोनू इसनूं वापस लेना चाहुंदी हाँ। कहन लगे देवी मैं व्यापारी नहीं हाँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हाँ, मैं खरीदो फरोख्त नहीं करता गा। जिहड़ी चीज़ मैनू मिल गई उसनूं मैं क्यों बेचां, वो हुण चीज़ के उत्ते मेरा अधिकार हो गया और दान दे विच आई हुई चीज़ उसनूं वेचना ये दोष लगता है, तो मैं दोष का भागीदार नहीं बनांगा। इस कारण तुसी हुण जाओ और भगवान महादेव मेरे हो गए। माँ पार्वती फिर बेहोश हो गई, डिग पई कि की बनया मेरे नाल, हुण मैं किस पासे जावां की करां। थोड़े समय बाद माँ नूं फिर सचेत किया। माँ जदों चेतन होई तो माँ नूं रोंदे हुए देखिया। सब कहन लगे कि हे भगवती हुण तुसीं इसदा दान कर चुके हो। फिर ब्राह्मण नूं प्रार्थना की संत कुमार जी नूं कि महाराज ये वापस कर दिओ, तुसीं एक गऊ ले लो, एक गऊ दे बदले लख गऊआं ले लो, पर महादेव जी नूं वापस कर जाओ। संत कुमार कहन लगे देवी मैं कोई व्यापार थोड़ी करना है, जे मैं गऊ ले लवांगा, एक गऊ ले लवांगा, 10 गऊआं ले लवांगा, 50 गऊआं ले लवांगा तो फिर की होगा, मेरा पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप सारा कुछ छुट जाएगा, क्योंकि फिर तो मैं गऊशाला की देख रेख दे विच ही लग्या रहांगा, फिर तो मैं गऊआं की सेवा दे विच ही लग्या रहांगा। मेरा तो नित कर्म है जड़ा
वो भी रह जाएगा। हर रोज़ जो मैं बैठ के माला दे नाल सिमरन करदा, चलते फिरते परमात्मा का चिंतन करदा, जिस जगह ते चाहिए असी उस जगह ते जा सकते हैं, जिथे चाहिए असी आ सकते हाँ। ये तो मेरा जान आउन पूजा पाठ सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं गौवां की देख रेख कराँगा ਜਾਂ परमात्मा का सिमरन कराँगा। इस करके मैनू गौवां की जरूरत नहीं है। मैं तो बाबा भोलेनाथ जी को लैके जावांगा। और देखो भोलेनाथ जी है ना जेड़े, ये सारे संसार का कल्याण करने वाले महादेव है, देवाधिदेव महादेव। और जदों मैं इन्हों लैके जावांगा, लोग इन्हों के दर्शन करने वास्ते तरसते हैं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, वो सब चाहते कि सानू महादेव जी के दर्शन मिलन। पर सारे लोग ना तो कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है, ना कोई इस जगह पर आके दर्शन कर सकता है। तो महाराज तुसी की करोगे? मैं हुण इन्हों अपने नाल लैके भगवान शंकर जी नूं जगह जगह ते नगर नगर दे विच सारी दुनिया दे विच भ्रमण करावांगा कि सारी दुनिया भगवान दे दर्शन कर लवे। गली गली दे विच, मुहल्ले मुहल्ले दे विच, नगर नगर, शहर शहर, मैं सारे किते लैके महादेव जी नूं सब लोकां नूं दर्शन दिवावांगा। सारे लोग महादेव जी का दर्शन करनगे। महादेव जी का दर्शन जीव दे कल्याणकारी है। महादेव जी का दर्शन जीव का उद्धार करने वाला है। 84 लख योनिया के बंधन तो महादेव जी की पूजा, महादेव जी के दर्शन छुड़ाने वाले है। और ऋषि मुनि महात्मा सैकड़ों साल तक आराधना करते रहते हैं, महाराज उन्होंने दर्शन नहीं देंगे। अज मैं जाके गली गली दे विच लोकां नूं महादेव जी दे दर्शन करावांगा। माँ पार्वती फिर घबरा गई कि इहदा ब्राह्मण लैके जाणगे, महादेव नूं छड्डणगे नहीं। माँ पार्वती उदास हो गई। जिस वेले माता पार्वती उदास हुई तो उपरों बहुत सुंदर एक दिव्य विमान उतरिया। दिव्य विमान दे अंदर गोलोक धाम दे वासी भगवान चतुर्भुज रूप के अंदर विराजमान है। और उन्होंने आके भी माँ भवानी नूं कहा कि भवानी हुण धैर्य का समा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। ये चारां दी परीक्षा कदों हुंदी है? जदों कोई आपत्ति का, कोई मुसीबत का वक्त आवे, उस वेले इन्हां चारां दी परीक्षा हुंदी है। थोड़े हुण धैर्य की परीक्षा का समा है कि तुसीं कितना क धीरज रखते हो। इस तरह के नाल कह के आशीर्वाद दे के वो तो चले गए। तो अंत दे विच जदों माता पार्वती बार बार प्रार्थना भी कर रही है और संत कुमार जी कहने लगे देवी हुण असीं जा रहे हैं। अंत दे विच जदों देखा कि सच्ची जा रहे हैं ना, तो देवी ने हथ जोड़ ले कि प्रभु जो थोड़ी इच्छा उस तरह के नाल करो, हुण मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उस वक्त ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होए। ब्राह्मण देव संत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र कहन लगे देवी ये तो एक लीला सी, कौतक सी, ये संसार नूं शिक्षा देने वास्ते सी। और देखो मैनू एक तुसी कपिला गऊ दे दिओ और महादेव भगवान शंकर जी नूं अपने घर दे विच रखो। एक कपिला गऊ का उन्होंने संकल्प लिया, दान लिया और उस तो बाद महादेव जी नूं मुक्त कर दिता। और महादेव जी और भगवती माँ पार्वती वो अपने कैलाश पर्वत के उत्ते बड़ी प्रसन्नता के नाल सब देवता फुलों की वर्षा कर रहे हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सब लोग उस जगह पर नृत्य कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। जदों यज्ञ संपन्न हो गया, यज्ञ पूरा हो जाने तो बाद सूत जी महाराज दस रहे कि ऋषियों जदों यज्ञ सारा संपन्न हो गया, यज्ञ की पूर्ण आहुति पै गई और जिन्ने भी लोग सी ना उस जगह ते आए हुए वो उस जगह तो अपने अपने धाम नूं सारे देवता विदा होके चले गए। सब देवता ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक नूं चले गए, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नूं चले गए, गोलोक धाम नूं चले गए, प्रभु इंद्र स्वर्ग नूं चले गए, ऋषि मुनि जिस जिस जगह तो आए सी अपने अपने लोकां नूं प्रस्थान कर गए। और इन्नी देर दे विच महादेव भगवान शंकर माँ पार्वती
ਆਪਣੇ ਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, हे ਭਵਾਨੀ, हे ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ, हे ਮਹਾਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। हे ਕਰੁਣਾ ਸਾਗਰ, हे ਜਗਨ ਜਨਨੀ, हे ਮਾਤਾ ਅੰਨਪੂਰਨੇਸ਼ਵਰੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂਜਾ ਵੰਦਨਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੱਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। हे ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਵਾ, ਪੂਰੀ, ਖੀਰ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਵਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। हे ਮਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਈ? ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, तो जगत जननी माँ भवानी अपने महल दे विचों बाहर गई, महादेव जी नूं नाल लैके। महादेव जी नूं नाल लैके जदों देखिया कि बहुत उस जगह ते एक बजुर्ग ब्राह्मण, सफ़ेद जिसका रंग है, चेहरे दे उत्ते बहुत ज़्यादा नूर है, बड़ा तेज है, बड़ा प्रकाश है चेहरे दे उत्ते, जिवें कोई सूरज भगवान चमकते है ना, इस तरह दे नाल उन्हां दे कोई गल नहीं, पीढ़ी लैके अंदरले पासे आ जाओ, बाहर बैठा नहीं जाता था। बाहर बारिश हो रही है, प्रभु की बड़ी अपार कृपा हुई है कि बहुत जड़ा मौसम सी कई दिनों तो ठीक नहीं सी चल रहा। अज महाराज ने कृपा करके अपना सब नवां दा मनोरथ पूरा किया है। बहुत तेज़ बारिश आई है और बारिश दे विच तुसीं इन्ने लोग बाहर बैठे हो। अंदर आ जाओ, जिस तरह के नाल भी थोड़े जिहे अंदर आके बैठ जाओ। पीढ़ियाँ ले लो अंदर, कोई गल नहीं, साइड ते आके रख लो। कैमरा ना किते गिरा दो जे, बस कैमरे तो पासे हो के जी कैमरा छड़ दो, इधरले पासे आ जाओ, सामने इधरले पासे आ जाओ, जगह छड़ दो, इधरले पासे आ जाओ, अंदरले पासे आ जाओ, बहुत जगह पई अंदर। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी महाराज दस रहे कि ऋषि हो, जिस वक्त भगवान महादेव और भवानी बाहर गए, भवानी माँ ने और महादेव जी ने बाहर जाके देखा कि दुबला पतला कमजोर बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण दरवाजे के उत्ते खड़ा है। तो माँ मैनू बाहर ही लिया के दे दे जो कुछ है। जिस वेले माता अंदर गई, अंदरों तरह तरह के पकवान, तरह तरह के लड्डू पेड़े जो भी सी, मिठाई और भोजन वो थाली दे विच सजा के बाहर लेके गई। बाहर की देख रहे हैं कि उस जगह ते कोई ब्राह्मण नहीं है, उस जगह ते कुछ भी नहीं। ये सारा कुछ देख के सब बड़े हैरान होए, भगवान महादेव भी थे, बाकी दे लोग भी, कि देखो हुने हुने इस जगह ते ब्राह्मण के रूप दे विच कोई आया और हुने हुने पता नहीं किस पासे चला गया, आलोप हो गया। और जिस वेले माता हजे बाहर खड़ी हुई सोच रही सी, विचार कर रही सी ना, तो अंदर माता दे पलंग दे उत्ते, माता दे सिंघासन दे उत्ते ओहियो जड़ा बालक बन के ब्राह्मण प्रगट हो गए। गोलोक धाम दे वासी भगवान उस जगह ते बालक रूप बन के आ गए। बोलो गणपति महाराज की। इस तरह दे नाल लीला कर दे प्रभु। माता बाहर खड़ी है, आप अंदर प्रगट हो गए। जिस वेले अंदर प्रभु प्रगट होए और उन्होंने किलकारी की आवाज़ सुनी, उन्होंने किलकारी की आवाज़ सुनदिया सार माँ दौड़ के अंदर नूं आई कि अंदर तो कोई नहीं सी, ये बच्चे की आवाज़ किस जगह तो आई। जिस वेले आके देखा कि बहुत ही खूबसूरत वो बच्चा है, बड़ा सुंदर बच्चा है, मनोहर बच्चा है, जिस दे चेहरे वाल देखा नहीं जा सकता। इन्ना क तेज, इन्ना क प्रकाश, इन्ना क नूर उस बच्चे के चेहरे ते है।
ये सारा कुछ देख के भगवती सोच रही है, आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तू जिस बेटे की कामना की सी वही बेटा तेनू प्राप्त हो गया। परमात्मा तेरे घर दे अंदर, सिद्धि विनायक महाराज तेरे घर दे अंदर प्रगट हुए है। उस वक्त जो सारे लोगों को पता लग्या, सब बड़े प्रसन्न हुए कि व्रत संपन्न होंदिया सार ही माता नूं पुत्र की प्राप्ति हो गई। जिस वेले बालक का उस जगह ते प्रगट होने का समाचार सबनों मिलिया, सब नचन लग पे, हसन लग पे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र वगैरह देवता जिन्ने लोग सी वो सारे दोबारा तो कैलाश पर्वत ते आ गए। कैलाश पर्वत ते आके सब देवतावां ने भगवान शंकर जी नूं बधाइयां देनियां शुरू कीतियां। किसे पासे माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, इंद्रानी है, ये जिन्नियां देवियां माता पार्वती दे महल दे अंदर चलियां जा रही हैं, उन्होंने गुफा, उन्होंने कमरे दे अंदर जा रही हैं। कुछ लोग भगवान शंकर जी दे कोल जाके बैठे हुए हैं। महादेव जी दे जिहड़े गण है, महादेव जी दे जिहड़े सेवादार है, वो एक पासे बैठ के अपनी खुशी मना रहे हैं। कोई भगवान शंकर जी की सेवा दे विच है, कोई दरवाजे के उत्ते खड़ा है और कोई हस रहा है, कोई नच रहा है, कोई भंगड़ा पा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मरदंग बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है और कोई नरसिंघा बजा रहा है। सारा कैलाश पर्वत बड़ी खुशी के नाल गूंजन लग पिया। सारे देवता आउंदे है और देवता आके नमन करते हैं। बालक नूं नमन करके, प्रणाम करके उस जगह तो वापस चले जाते हैं। महादेव जी के कोल जाके बैठते हैं। देवियां आउंदियां है, वो भी बालक नूं देखदियां है, आशीर्वाद दिंदियां है। माता दे महल दे अंदर चारों पासे वो भी इकट्ठियां हो गई। सब सिद्ध, यक्ष, किन्नर, देवता, मुनि, महर्षि सब उस जगह ते आ गए। जदों कुछ समा बतीत होया तो उस जगह ते कौन? शनि जी महाराज आ गए। देखो, क्योंकि सारे के सारे ग्रह भी उस जगह ते आ रहे हैं ना, तो भगवान शनि देव उस जगह ते पहुंच गए। जिस वेले शनि देव उस जगह ते पहुंचे और उन्होंने अपना सिर, अपनी नज़र नीवी की हुई है और हौली 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 वो वध रहे अगे और शनि देवता भगवान कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण जी के उपासक है शनिदेव महाराज। ये कथा ब्रह्म विवर्त पुराण के अंदर और गणपति कथा के अंदर भी आती है कि गणपति जी दे अपने शनिदेव महाराज भगवान कृष्ण जी का ध्यान करते हैं और उन्होंने ध्यान करते हुए नेत्र उठा के नहीं किसी को देखते और अखां नीवियां करके ही वो चलते हैं। चलते हुए महाराज शनिदेव भोलेनाथ जी के कोल पहुँचे, महादेव जी को जाके बधाई दी और नाल आग्ञा मंगी कि प्रभु मैं उस बालक के दर्शन करना चाहना, स्पर्श करना चाहना मैं बालक नूं। मेरे इष्ट देव प्रभु गोलोक धाम दे वासी कन्हैया जी इस जगह ते आए हैं और मैं उन्होंने दर्शन करना चाहना। तुसी मैनू आग्ञा दो, मैनू इजाजत दो। भोलेनाथ कहन लगे शनिदेव तुसी ना गलत जगह ते आ गए। क्यों महाराज? जिहड़ा बालक प्रगट होया है वो तो भवानी पार्वती दे महल दे अंदर प्रगट होया है। तुसी बालक दे दर्शन करने है तो पार्वती जी दे महल दे अंदर जाओ, उत्थे जाके बालक दे दर्शन करो और थोनू दर्शन उस जगह ते होणगे। मेरे कोल तां लोकी साहब बैठे खुशी मना रहे है, बधाई देने वाले लोग मेरे कोल बैठे हैं, जे थोड़ा मन करे तुसी बैठ जाओ। शनिदेव कहने लगे नहीं प्रभु, मैं सिर्फ बालक दे चरण स्पर्श करके और अपना आशीर्वाद दे के इस जगह तो चलिया जाना है। नाल भगवान जी ने एक अपने सेवादार नूं भेजिया कि जाओ इसनूं जाके शनिदेव नूं देवी पार्वती दे महल दे बाहर जो द्वारपाल खड़े हैं ना, विशालाक्ष, विशालाक्ष का मतलब जिसके नेत्र बहुत बड़े है। नेत्र बड़े होने का मतलब ये नहीं कि अखां मोटिया मोटिया होने तो नेत्र बड़े मन्ने जाते हैं। जो बहुत चीज़ों बड़ी बरीकी दे नाल देखता है,
बड़ी गहराई दे नाल देख के निरीक्षण करता है, हर एक चीज़ का बहुत बरीकी दे नाल ध्यान रखता है। तो विशालाक्ष दे कोल लैके चले गए जदों, और विशालाक्ष नूं शनिदेव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, विशालाक्ष भैया असी भवानी दे दर्शनां नूं इस जगह ते आए हाँ, बालक प्रगट होया है, असी उस बालक दे भी दर्शन करने है, जे थोड़ी आग्ञा होवे तो सानू अंदर जाण दी इजाजत दे दिओ, मैं अंदर चला जावां, थोड़ी आग्ञा मिल जावे तां। विशालाक्ष कहने लगे, भाई शनिदेव इस तरह के नाल अंदर नहीं जाया जा सकता, तो किवें जाना होएगा? तुसी इसे जगह ते दरवाजे ते खड़े रहना, मैं जाके माँ भवानी तो आग्ञा लैके आवांगा, और जदों माँ पार्वती आग्ञा दे देवेगी फिर थानू दर्शन हो जाणगे, फिर थानू दर्शन प्राप्त होणगे बच्चे दे। शनिदेव कहने लगे, भैया ठीक है, मैं इसे जगह ते रुकदा हाँ, और तुसी जल्दी पूछ के मैनू दसो, क्योंकि मेरा मन बड़ा बेचैन है बच्चे नू स्पर्श करने वास्ते। विशालाक्ष गए। विशालाक्ष जिस वेले उस जगह ते पहुँचे, सुखदेव जी सूत जी महाराज दस रहे कि ऋषियों जाके माँ भवानी नू दस्या कि शनिदेव आए है आशीर्वाद देने वास्ते बच्चों नू। माँ ने क्या कि जाओ शनिदेव नू अंदर लियाओ। अंदर आके शनिदेव इस बच्चे नू दर्शन देन और इस बच्चे नू आशीर्वाद देन। विशालाक्ष चले गए वापस, शनि देवता नू भेज दिता कि जाओ, माता दी आग्ञा मिल गई। जिस वेले शनि देव अंदर पहुँचते हैं ना, अपना सिर उन्होंने नीवा किया होया, उन्हों की दृष्टि किसी होर चीज़ के उत्ते नहीं पै रही, इधर उधर किसी सज्जे खब्बे किसी पासे नहीं देखते। जाके बच्चे नू इस तरह के नाल नमन किया, बच्चे नू प्रणाम करके जिस वेले वापस आउण लगे ना, वंदना करके स्तुति करके मत्था टेक के, माँ पार्वती शनिदेव नू कहन लगी, शनिदेव क्या तुसी इस बच्चे नू अखां खोल के देखोगे नहीं? क्या तुसी इस बच्चे दे दर्शन चंगी तरह दे नाल नहीं करोगे? इस बच्चे नू तुसी अखां खोल के चंगी तरह दे नाल देख के आशीर्वाद दिओ। अपने शनिदेव कहने लगे, माते कृपा करो, हे जगत जननी माफ करना, मैं इस बच्चे नू देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैनू मेरी धर्म पत्नी का श्राप है, इस कारण मैं इस बच्चे नू देखांगा नहीं। माँ पार्वती ने फिर जिद की, कह लगी नहीं, जरूर इस बच्चे नू देखो और देख के इसनू दर्शन दिओ। शनिदेव बड़ी दुविधा दे विच पै गए। शनिदेव बड़ी दुविधा दे विच पै गए कि हुण मैं की करा। मैं माता नू हाँ भी नहीं कर सकता, बच्चे नू मैं देख भी नहीं सकता, और मैं माँ नू ना भी नहीं कर सकता। जे मैं बच्चे नू नहीं देखिया तो माता नाराज हो जाएगी, ये जाने पता नहीं किस तरह का मैनू शाप दे देवे। जे मैं बच्चे नू देखदा हाँ तो मेरी पत्नी का दिता होया जिहड़ा मैनू श्राप है वो निष्फल नहीं जा सकता। फिर माँ नू प्रार्थना की कि हे माँ, मैनू देखण वास्ते मजबूर ना करो, क्योंकि मैनू मेरी धर्म पत्नी ने श्राप दिता सी। धर्म पत्नी ने श्राप कहने लगे, हाँ, जिस वक्त मेरी शादी हुई, शनिदेव कहने लगे, और मेरी धर्म पत्नी पतिव्रता सी, बड़े अच्छे नियमां की पालना करने वाली और हमेशा आज्ञा दे विच रहन वाली, किसी वक्त भी इस तरह का समा नहीं सी आया कि उसने कोई मेरी आज्ञा की उलंघना की होवे। और हे मातेश्वरी, हे संसार दी जननी, हे सती माँ, एक बार की होया, मेरी शादी होए नू थोड़ा जा समा होया सी, और मेरी धर्म पत्नी एक दिन मैं किते
ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਘਨਸ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਉਸਨੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ, ਮਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ हे ਪਤੀ ਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਆਭੂਸ਼ਣ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਆਭੂਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਨੀਦੇਵ, ਇਹ ਨਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੋ, ਦੇਖੋ। ਸ਼ਨੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ क्षमा ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਿਰਛੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਕੋਨ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ पलंग सी जड़ा लहू लुहान हो गया, चीतकार पैदा हो गई। सब जाने ने रोना कुरलाना विरलाप करना शुरू कर देता, बार बार बिलख रहे हैं कि एक ही हो गया, एक ही हो गया। शनिदेव उस जगह ते हुण सुन्न होके खड़े हो गए और शनि कह रहे कि मैं पहले ही क्या सी कि माता मैं नहीं देखना गा। कुछ समय बाद माता बेहोश होकर डिग पई। बाकी दी जिन्नियां देवियां माँ लक्ष्मी सरस्वती ये नज़दीक खड़िया हुई सी और उन्हें सब खड़ी हुई देवियां ने जिस वेले माँ पार्वती नूं बेहोश देखिया, बेहोशी की हालत दे विच, बेहोशी की हालत दे विच देखदियां सार ही माँ नूं उन्होंने सांत्वना देनी शुरू की, जल दे छिट्टे दिते। माता दोबारा चेतन हुई, जिस वेले होश दे विच आई
और होश दे विच आके माता फिर विनाश करने वास्ते उतारू हो गई। भगवान नारायण जी नूं, भगवान शंकर जी नूं, भगवान ब्रह्मा जी नूं सारिਆਂ ਨੂੰ उस जगह ते पता लग्या कि अंदर आह घटना घट गई। अंदर ਜਿਹੜਾ बालक हुणे प्रगट होया सी उसका सिर धड़ दे नालों अलग हो गया। सब विचार करन लगे कि हुण बच्चे का किवें जिउंदा कीता जावे, बच्चे नूं किस तरीके दे नाल जिउंदा कीता जावे। तो कहन लगे कि जाओ, जो भी थोनों इस जगह ते जांदियां प्रथम दृष्टिया, यानी कि जदों तुसी कैलाश पर्वत तो जाओगे ना, तो पहली निगाह थोड़ी जिस भी जीव के उत्ते पवे उसका सिर कट के लियाओ। तो भगवान नारायण स्वयं गए। नारायण प्रभु जदों गए ना, तो उन्हां दी सब तो पहली जिहड़ी निगाह सी एक हाथी के उत्ते पै गई। जिस वेले हाथी के उत्ते निगाह पई और अपना सुदर्शन चक्कर लिया भगवान ने, हाथी का सिर कटिया। जिस वेले हाथी का सिर कट के लैके आउण लगे गरुड़ जी के उत्ते सवार होके, तो हथनी ने अपनी बड़ी मजबूत सुंड के नाल गरुड़ जी के पंजे नूं फड़ लिया। गरुड़ जी उपर उड़ नहीं सकते। भगवान नारायण गरुड़ के उत्ते विराजमान है, बैठे हुए है। नारायण प्रभु कहन लगे हथनी नूं इस नूं छड्ड दिओ। कहन लगी नहीं, इस नूं छड्डिया नहीं जा सकता गा। कहन लगे मेरे पति का सिर क्यों निर्दोष का तुसीं लैके जा रहे हो, मैं तुहानूं श्राप दे के सब देवतावां नूं नष्ट कर देवांगी, मैं भी पतिव्रता हाँ। सूत जी कहन लगे नारायण प्रभु ने कहा कि हे देवी, मैं तेरे पति का सिर किसी होर हाथी के सिर के नाल जोड़ देना, तेरा पति जिउंदा हो जाएगा। कहन लगी मेरे पति का ही सिर मैनू चाहिदा है। तो कहन लगे नहीं, ये नहीं हो सकता गा, क्योंकि हुण जिहड़ा सीस कट्टिया जा चुकिया है ना, दोबारा इस सीस दे उत्ते ये नहीं लग सकता। तो ये किस दे उत्ते, ये तो हुण जिहड़ा भगवान शंकर जी का बालक है उस दे सीस दे उत्ते ही लगाया जाएगा, उस दे सिर दे उत्ते ही लगाया जाएगा। और असी भगवान शंकर जी के बालक नूं जिउंदा करना है। भगवान महादेव जी के पुत्र नूं, उमा पुत्र नूं असी दोबारा जिउंदा करना है। कहन लगे देवी ए महाराज, किसी होर जीव का सिर कट के ले जाओ, उस दे नाल तुसी उमा दे पुत्र नूं जिउंदा करदे हो। पार्वती पुत्र नूं तुसी किसी होर जीव जंतु दे, किसी मनुष्य के शरीर के विचों कोई अंग लैके उसका सिर लैके उसनूं जिउंदा करदे हो, क्योंकि देवतावां दे कोल बहुत विधियां है, बड़ियां शक्तियां है, बड़ी ताकत है। होर किसी हाथी का सिर लिया के जां होर किसी जानवर का सिर लिया के जां होर किसी आदमी का सिर लिया के उसनूं तुसीं जिउंदा क्यों नहीं कर सकते। भगवान नारायण कह लगे देवी नहीं, ये विधान इस तरह का है और इस वेले तो मैनू जान दे और मैं तेरे पति नूं दोबारा जिउंदा कर देवांगा। हथनी ने जो बार बार प्रार्थना की, आग्रह किया, शाप देने का डर दिखाया, नारायण जी ने एक दूसरे होर हाथी का सिर कट के उस दे सिर के उत्ते ला दिता, पहला वाले हाथी नूं जिउंदा कर दिता। और वो जिहड़ा सीस सी उसनूं उस जगह तो लियांदा और लिया के उस बालक के धड़ के उपर उसनूं स्थापित किया। और जिस वेले माता पार्वती नूं दस्या गया कि थोड़ा बालक जिउंदा हो गया, तो माँ पार्वती उठ के बैठ गई। पार्वती माँ नूं फिर क्रोध आ गया और माँ पार्वती क्रोध दे विच आके कहन लगी कि देखो, मेरा इन्ना खूबसूरत सुंदर बालक, तुसी उस मेरे बालक का वध किया है, मेरे बालक की तुसी हत्या की है। थोड़े तो मेरे बालक की सुंदरता देख के जरी नहीं गई, तुसी बर्दाश्त नहीं कर सके। तुसी देवता बड़े कपटी हो, तुसी बड़े घमंडी हो। बहुत सारे देवतावां नूं अपशब्द कहे माता पार्वती ने कि तुसी किसी की खुशी नूं देख के, किसी की प्रशंसा नूं देख के, किसी की उन्नति नूं देख के खुश नहीं हुंदे, तुसी किसी के सुख नूं देख के खुश नहीं हुंदे। वो मेरा बालक इन्ना ज़्यादा सुंदर सी, इन्ना ज़्यादा खूबसूरत सी कि
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੂਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੰਦਨ ਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਪਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਆ ਗਏ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕੁੰਠ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਯਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਫਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
जिस वेले वो माला देवतावां दे राजा इंद्र नूं मिल गई, दुर्वासा ऋषि दा वरदान दे के चले गए अते देवतावां दे राजा इंद्र ने उस माला दी कदर नहीं की। जदों उस माला दी कदर नहीं की, उसने उस माला नूं लिया, जिस हाथी दे उत्ते बैठा होया सी ना इंद्र, उस हाथी दे मत्थे दे उत्ते वो माला रख दी, गले दे विच पा दी। जिस वेले हाथी दी सुंड दे उत्ते वो माला लटक गई तो हाथी दे कोले भगवान नारायण जी दे आशीर्वाद दे नाल सारियां रिद्धियां सिद्धियां सारी शक्तियां सारी ताकत आ गई। जदों सारियां चीज़ां हाथी दे कोल चलियां गईयां तो हुण उस हाथी ने इंद्र नूं नीचे गिरा दिता। इंद्र नूं थल्ले सुट के हाथी मस्त होके जंगल दे विच भ्रमण करदे 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 उस जगह ते पहुंच गया। और जदों पहुंचया भगवान जी ने देखा कि ये जड़ा हाथी है इस दे सिर दे उपर यह माला है, और हाथी दे सिर दे उत्ते ये माला जिन्ना चिर रहेगी, जिन्ना चिर हाथी रहेगा ना, उन्ना चिर किसी दे काबू दे विच नहीं आएगा। तो प्रभु ने उस हाथी का सिर कट्टिया, वो गणेश जी के सिर के उपर धड़ के उपर उसनों स्थापित किया। जदों इस जगह ते विराजमान हो गया और वो जिन्नियां शक्तियां सी सारियां स्वयं ही भगवान गणेश जी महाराज नूं प्राप्त हो गई। सूत जी कह रहे कि ऋषियों इस तरह के नाल गणपति जी महाराज की दूसरे कल्प दे विच उत्पत्ति हुई। और जिस वेले माता पार्वती ने देखा कि मेरा बालक तो बहुत सुंदर सी पर यह बालक सुंदर नहीं है, तो उन्होंने देवतावां दे नाल तकरार करना शुरू किया। सूरज भगवान नूं शनि देवता नूं श्राप देने वास्ते माता तैयार हो गई। जिस वेले शनि देवता नूं श्राप देने वास्ते माँ तैयार हुई तो भगवान सूरज आ गए। सूरज कौन है? शनि देवता के पिताजी। देखा कि मेरे बेटे का तो कोई कसूर नहीं, और मेरे बेटे नूं माँ भवानी श्राप देने वास्ते तैयार हो गई। और उधरों भगवान सूरज नारायण भगवती माँ उमा पार्वती नूं श्राप देने वास्ते तैयार हो गए। सारे देवता एक दूसरे के आमने सामने हो गए। सारे देवता एक दूसरे नूं श्राप देने वास्ते तैयार हो गए। सूत जी महाराज कह रहे कि ऋषियों उस वेले भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी ने सब नावां ने मिल के सब देवतावां नूं माँ पार्वती नूं इन्हां सब नावां नूं शांत किया और उस बालक नूं तरह तरह के वरदान दिते कि इस बालक की सब तो पहला दुनिया दे विच समाज दे विच पूजा होया करेगी। इस बालक की पूजा तो बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होएगा। इस बालक की आराधना तो बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होएगा, कोई जप पूरा नहीं होएगा, कोई तप पूरा नहीं होएगा। तो जो भी कार्य किए जाते हैं वो गणपति जी महाराज के आशीर्वाद के नाल ही संपन्न होंदे है। और उस माला के प्रभाव के नाल गणपति जी महाराज रिद्धियां सिद्धियां के स्वामी भी बनते हैं। उन्हां दी वजह के नाल गणपति जी महाराज सारे संसार दे विच वंदनीय पूजनीय भी बने। तो जो भी कोई गणपति जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना वंदना करते हैं तो गणपति जी उन्हां सब नावां दे उपर कृपा करते हैं। इस तरह के नाल शनि देवता की जिहड़ी दृष्टि है ना, उहदे नाल भी गणेश जी का एक बार सीस धड़ दे नालों अलग हो गया। तो शनि देवता की पूजा फलदाई हुंदी है। शनि देवता की पूजा सानू करनी चाहिदी है, पर शनि देवता की दृष्टि दे विच यानी कि निगाह दे विच नहीं जाना चाहिए। अजकल जगह जगह ते शनि देवता के मंदिर बन रहे हैं, शनि देवता की पूजा हो रही है, बहुत चंगी गल है। मैं मंदिर बनन दे शनि देवता की पूजा के खिलाफ नहीं हाँ, पर कुछ एक चीज़ां इस तरह दी होंदियां जिन्हां दी मर्यादा दा सानू नहीं पता हुंदा गा। शनि देवता के सामने होके किते कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शिगनापुर महाराष्ट्र दे विच जिथे शनि जी का मुख्य मंदिर है ना, उस जगह ते शनि देवता की मूर्ति नहीं है, उस जगह ते भी शनि देवता की शिला है। तो शिला की पूजा करन दा विधान है। शनि देवता की जिहड़ी मूर्ति है उन्हां दे सामने जाके नतमस्तक होना, शनि देवता के सामने जाके उन्हां दी पूजा करनी, तो उसका फल अच्छा नहीं मिलता। यह ग्रंथां की कथा है।
ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਮਨ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣੇ, ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੰਧੂਰ, ਘੀ, ਤੇਲ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਰਜ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਿਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਹੋਟਲ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਟਾਊਨ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 9 ਨੰਬਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ, ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਚੌਕ, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ, ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਘਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੋ ਗਣਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਜਨ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮੰਡਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਲੇ
गणपति महाराज की जय। रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई, एहो मैं अर्जी लाई गुरु जी, एहो मैं अर्जी लाई। रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई, एहो मैं अर्जी लगाई।
हाँ जी पिछे दे दो सरता जी ਨੂੰ हाँ जी सरता भैन जी दे दो पिछे सारे दे गले खराब हो गया चलो कोई गल नहीं आ सरे ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੋਲਦੇ ਲਓ ਦੇ ਦੇ चलो जी पंडित जी हाँ जी आरती की तैयारी होएगी सब मिलके भगवान जी की आरती उतारेंगे पखे बंद कर दो सब बोलो गणपति महाराज की जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती जय गणेश देवा जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी धूप चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा धूप चढ़े फूल चढ़े धूप चले फूल चढ़े और चढ़े मेवा धूप चढ़े फूल चढ़े लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा लड्डुअन का भोग लगे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी माथे जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेव